Introduction. Radiopharmaceuticals, as the name suggests, are pharmaceutical formulations consisting of radioactive substances, radioisotopes and molecules labeled with radioisotopes, which are intended for use either in diagnosis or therapy. Radiopharmaceuticals are essential components of nuclear medicine practice, where radiopharmaceuticals are administered to patients for diagnosing, managing and treating number of diseases. Nearly 95% of radiopharmaceuticals are used for diagnostic purposes, while the rest is used for therapy. परिचय. रेडियोफार्मास्यूटिकल्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, हैं रेडियोधर्मी से युक्त फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पदार्थ, रेडियोआइसोटोप और लेबल वाले अणु। रेडियोआइसोटोप, जो या तो निदान में या उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं। चिकित्सा. रेडियोफार्मास्यूटिकल्स परमाणु के आवश्यक घटक हैं। चिकित्सा अभ्यास, जहां रेडियोफार्मास्यूटिकल्स हैं। निदान, प्रबंधन और उपचार के लिए रोगियों को प्रशासित किया जाता है। रोगों की संख्या. लगभग 95% रेडियोफार्मास्यूटिकल्स का उपयोग निदान के लिए किया जाता है। प्रयोजनों के लिए, जबकि बाकी का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। Definitions and terminology. A nuclide, or nuclide, from nucleus, also known as nuclear species, is an atomic species characterized by the specific constitution of its nucleus, i.e., by its number of protons, Z, its number of neutrons, N, and its nuclear energy state. A radionuclide, radioactive nuclide, radioisotope or radioactive isotope, is an atom that has excess nuclear energy, making it unstable. This excess energy can be used in one of three ways: emitted from the nucleus as gamma radiation, transferred to one of its electrons to release it as a conversion electron, or used to create and emit a new particle, alpha particle or beta particle, from the nucleus. परिभाषाएं और शब्दावली. एक न्यूक्लाइड या न्यूक्लियाइड, नाभिक से, जिसे परमाणु भी कहा जाता है। प्रजाति, विशिष्ट द्वारा विशेषता एक परमाणु प्रजाति है। इसके नाभिक का गठन, यानी इसके प्रोटॉन की संख्या से, Z, इसका न्यूट्रॉन की संख्या, N, और इसकी परमाणु ऊर्जा स्थिति। एक रेडियोन्यूक्लाइड, रेडियोधर्मी न्यूक्लाइड, रेडियोआइसोटोप या रेडियोधर्मी आइसोटोप एक परमाणु है जिसमें अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा होती है, जिससे ये बनता है। अस्थिर. इस अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग तीन तरीकों में से एक में किया जा सकता है: उत्सर्जित नाभिक से गामा विकिरण के रूप में, इसके एक में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे रूपांतरण इलेक्ट्रॉन के रूप में जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉन या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक नया कण, अल्फा कण या बीटा कण, उत्सर्जित करता है। नाभिक. Nuclides vs isotopes. A nuclide is a species of an atom with a specific number of protons and neutrons in the nucleus, for example carbon-13 with 6 protons and 7 neutrons. The nuclide concept, referring to individual nuclear species, emphasizes nuclear properties over chemical properties, while the isotope concept, grouping all atoms of each element, emphasizes chemical over nuclear. The neutron number has large effects on nuclear properties, but its effect on chemical reactions is negligible for most elements. Nuclide बनाम isotope. न्यूक्लाइड एक परमाणु की एक प्रजाति है जिसमें विशिष्ट संख्या में प्रोटॉन होते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन, उदाहरण के लिए 6 प्रोटॉन के साथ कार्बन 13 और 7 न्यूट्रॉन। न्यूक्लाइड अवधारणा, व्यक्तिगत परमाणु प्रजातियों का जिक्र, रासायनिक गुणों पर परमाणु गुणों पर जोर देता है, जबकि आइसोटोप अवधारणा, प्रत्येक तत्व के सभी परमाणुओं को समूहीकृत करना, पर जोर देती है। परमाणु पर रसायन. न्यूट्रॉन संख्या का परमाणु गुणों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसकी अधिकांश तत्वों के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर प्रभाव नगण्य है।
Isotopes. Isotopes are variants of a particular chemical element which differ in neutron number, and consequently in nucleon number. All isotopes of a given element have the same number of protons, but different numbers of neutrons in each atom. Isotopes of an element are atoms of same element with the same atomic number, Z, but different mass numbers, A. They occupy the same place in the periodic table and have similar chemical properties. Isotope. आइसोटोप एक विशेष रासायनिक तत्व के प्रकार हैं जो अलग अलग होते हैं न्यूट्रॉन संख्या और फलस्वरूप न्यूक्लियॉन संख्या। किसी दिए गए तत्व के सभी समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन प्रत्येक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी तत्व के समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। परमाणु संख्या Z, लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या A। वे आवर्त सारणी में समान स्थान रखते हैं और समान हैं। रासायनिक गुण। न्यूक्लियॉन नंबर, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ, इन अ न्यूक्लियस डिफाइंस एन आइसोटोप्स मास। नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, केमिकल एलिमेंट एंड इट्स मास एंड एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियॉन संख्या, न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और की संख्या। एक नाभिक में न्यूट्रॉन दोनों एक आइसोटोप के द्रव्यमान को परिभाषित करते हैं। संख्या, न्यूक्लियॉन संख्या, रासायनिक तत्व और उसका द्रव्यमान और परमाणु संख्या। रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिव डिके, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर डिके, रेडियोएक्टिविटी। Radioactive disintegration or nuclear disintegration is the process by which an unstable atomic nucleus loses energy by radiation. A material containing unstable nuclei is considered radioactive. Three of the most common types of decay are alpha decay, beta decay, and gamma decay, all of which involve emitting one or more particles. Radiodharmita, रेडियोधर्मी क्षय, जिसे परमाणु क्षय, रेडियोधर्मिता के रूप में भी जाना जाता है, रेडियोधर्मी विघटन या परमाणु विघटन प्रक्रिया है जिससे एक अस्थिर परमाणु नाभिक विकिरण द्वारा ऊर्जा खो देता है। अस्थिर नाभिक वाले पदार्थ को रेडियोधर्मी माना जाता है। क्षय के तीन सबसे आम प्रकार अल्फा क्षय, बीटा हैं क्षय और गामा क्षय, जिनमें से सभी में एक या अधिक कणों का उत्सर्जन शामिल है। टाइप्स ऑफ डिके, अल्फा, बेटा एंड गामा रेडिएशंस। Radioactive rays were observed to be of three types. 1. Alpha rays, which could barely penetrate a piece of paper. 2. Beta rays, which could penetrate 3 millimeters of aluminium. 3. Gamma rays, which could penetrate several centimeters of lead. We now know that alpha rays are helium nuclei, beta rays are electrons, and gamma rays are electromagnetic radiation. क्षय के प्रकार, अल्फा, बीटा और गामा विकिरण। रेडियोधर्मी किरणें तीन प्रकार की देखी गईं। 1. अल्फा किरणें, जो मुश्किल से कागज के एक टुकड़े में प्रवेश कर सकती थीं। 2. बीटा किरणें, जो 3 मिलीमीटर्स एल्यूमीनियम में प्रवेश कर सकती हैं। 3. गामा किरणें, जो कई सेंटीमीटर शीशे को भेद सकती हैं। अब हम जानते हैं कि अल्फा किरणें हीलियम नाभिक हैं, बीटा किरणें हैं इलेक्ट्रॉन और गामा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। अल्फा डिके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैनॉट होल्ड अ लार्ज न्यूक्लियस टुगेदर। Mass of the parent nucleus is greater than the sum of the masses of the daughter nucleus and the alpha particle. This difference is called the disintegration energy. When a nucleus decays through alpha emission energy, alpha क्षय, मजबूत परमाणु बल बड़े नाभिक को धारण नहीं कर सकता। एक साथ, मूल नाभिक का द्रव्यमान इसके योग से अधिक होता है। पुत्री नाभिक और अल्फा का द्रव्यमान कण, इस अंतर को विघटन ऊर्जा कहा जाता है। जब एक नाभिक अल्फा उत्सर्जन ऊर्जा के माध्यम से क्षय होता है। बेटा डिके डैश, बेटा and beta plus, and a nucleus can capture one of its inner electrons. बीटा क्षय डैश, बेटा और बेटा प्लस,
और एक नाभिक उसके किसी एक अंदरूनी भाग पर कब्जा कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गामा डिके। Gamma rays are very high energy photons. They are emitted when a nucleus decays from an excited state to a lower state, just as photons are emitted by electrons returning to a lower state. गामा क्षय। गामा किरणें बहुत उच्च ऊर्जा वाले फोटन हैं। वे उत्सर्जित होते हैं जब एक नाभिक उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में विघटित हो जाता है, बस चूंकि फोटन निचली अवस्था में लौटने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। Half-life and rate of decay. The half-life is the time it takes for half the nuclei in a given sample to decay. It is related to the decay constant. आधा जीवन और क्षय की दर। अर्ध जीवन वह समय है जो किसी दिए गए आधे नाभिक के लिए लगता है सड़ने के लिए नमूना। ये क्षय स्थिरांक से संबंधित है। यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी। इन द इंटरनेशनल सिस्टम SI, the unit of radioactivity is 1 nuclear transmutation per second and is expressed in becquerel. BQ, named after the scientist Henry Becquerel. The old unit of radioactivity was Curie, named after the scientists Madame Marie Curie and Pierre Curie, the pioneers who studied the phenomenon of radioactivity. 1 Chi is the number of disintegrations emanating from 1 gram of radium-226, and is equal to 3.7 x 1010 becquerels. रेडियोधर्मिता की इकाइयाँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली C में रेडियोधर्मिता की इकाई 1 है। प्रति सेकंड परमाणु रूपांतरण और बेकरेल में व्यक्त किया गया है। BQ, जिसका नाम वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल के नाम पर रखा गया है। रेडियोधर्मिता की पुरानी इकाई क्यूरी थी, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया। वैज्ञानिक मैडम मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, अग्रणी जो रेडियोधर्मिता की घटना का अध्ययन किया। एक ची 1 ग्राम से निकलने वाले विघटन की संख्या है। रेडियम 226 और 3.7 x 1010 becquerels के बराबर है। The Geiger counter is a gas-filled tube with a wire in the center. The wire is at high voltage. The case is grounded. When a charged particle passes through, it ionizes the gas. The ions cascade onto the wire, producing a pulse. गीगर काउंटर एक गैस से भरी ट्यूब है जिसके बीच में एक तार लगा होता है। तार उच्च वोल्टेज पर है। मामला जमींदोज हो गया है। जब एक आरोप लगाया कण गुजरता है, ये गैस को आयनित करता है। आयन पर झरना होता है। तार एक नाड़ी उत्पन्न करता है। The Geiger counter principle in working. As ionizing radiation coming from the surrounding medium passes through the mica window and enters the Geiger-Müller tube, it ionizes the gas inside, transforming it into positively charged ions and electrons. The electrons eventually migrate towards the anode of the tube detector, while the positively charged ions accelerate towards the cathode. गीगर काउंटर सिद्धांत और कार्य। जैसे आसपास के माध्यम से आने वाला आयनकारी विकिरण गुजरता है, अभ्रक खिड़की के माध्यम से और गीजर मुलर ट्यूब में प्रवेश करती है। अंदर गैस को आयनित करता है, इसे सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए आयनों में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रॉन अंततः ट्यूब के एनोड की ओर चले जाते हैं। डिटेक्टर, जबकि सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए आयन तेजी से बढ़ते हैं। Cathode. As the positive ions move towards the cathode, they collide with the remaining inert gas, thus producing more ions through an avalanche effect. When this happens, an electrical current is established between the two electrodes. Quenching. It is the process to prevent the continuous discharge. Self-quenching is done by vapors of ethyl alcohol because its ionization energy is less than the ionization energy of argon atom. जैसे ही धनात्मक आयन कैथोड की ओर बढ़ते हैं, वे टकराते हैं।
शेष अक्रिय गैस इस प्रकार एक के माध्यम से अधिक आयन उत्पन्न करती है। हिमस्खलन प्रभाव। जब ऐसा होता है तो विद्युत प्रवाह होता है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच स्थापित किया गया शमन। ये लगातार होने वाले डिस्चार्ज को रोकने की प्रक्रिया है। खुद शमन एथिल अल्कोहल के वाष्प द्वारा किया जाता है क्योंकि इसकी आयनीकरण ऊर्जा ऑर्गन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा से कम है। काउंटिंग रेट। The GM counter can count about 5000 particles sec. The counting rate depends upon the death and recovery time of GM counter. Death time. In the counter, the slowly moving positive argon ion takes 200 seconds to reach the cathode. If the second radiation enters the tube during this time, it will not be registered. This time is called death time of the counter. गिनती दर। GM काउंटर लगभग 5000 कण सेकंड गिन सकता है। गिनती दर GM काउंटर की मृत्यु और ठीक होने के समय पर निर्भर करती है। मृत्यु समय। काउंटर में धीरे धीरे चलने वाले सकारात्मक ऑर्गन आयन को 200 सेकंड लगते हैं कैथोड तक पहुंचें। यदि इस दौरान दूसरा विकिरण ट्यूब में प्रवेश कर जाता है, जिस समय ये दर्ज नहीं होगा उस समय को मृत्यु का समय कहा जाता है। विरोध करना। रिकवरी टाइम। आफ्टर डेथ टाइम द ट्यूब टेक्स अनदर 200 seconds to regain the original working condition. This time is called recovery time of the counter. Paralysis time. The sum of death and recovery time is known as paralysis time, which is 400 seconds. The tube can respond to the second radiation after 400 sec. वसूली में लगने वाला समय। मृत्यु के समय के बाद ट्यूब को पुनः प्राप्त करने में 200 सेकंड का समय लगता है। मूल काम करने की स्थिति। इस समय को पुनर्प्राप्ति समय कहा जाता है। विरोध करना। पक्षाघात का समय। मृत्यु और ठीक होने के समय का योग पक्षाघात समय के रूप में जाना जाता है, जो कि 400 सेकंड है। ट्यूब दूसरे विकिरण पर प्रतिक्रिया कर सकती है 400 सेकंड के बाद। A scintillation counter. This uses a scintillator, a material that emits light when a charged particle goes through it. The scintillator is made light tight, and the light flashes are viewed with a photomultiplier tube, a photocathode that emits an electron when struck by a photon, and then a series of amplifiers. एक जगमगाहट काउंटर। ये एक सिंटिलेटर का उपयोग करता है, एक ऐसी सामग्री जो चार्ज होने पर प्रकाश उत्सर्जित करती है। कण इससे होकर गुजरता है। सिंटिलेटर को हल्का तंग बनाया गया है और प्रकाश की चमक देखी जा सकती है। एक फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब के साथ एक फोटोकैथोड जो फोटन से टकराने पर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, और फिर एम्पलीफायरों की एक श्रृंखला। Applications of radiopharmaceuticals in healthcare system. Pharmaceutical application of radioactive substances. Treatment of cancers and tumors. Americium-241 used as antineoplastic. Californium-252 used as antineoplastic. Cobalt-60 used as antineoplastic. Gold-94 used as antineoplastic. Holmium-66, 26H, being developed for diagnosis and treatment of liver tumors. Iodine-125, 60D, used in cancer brachytherapy, prostate and brain. रेडियोधर्मी का फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग। पदार्थों, कैंसर और ट्यूमर का उपचार। अमेरिकियम 241 का उपयोग एंटीनियोप्लास्टिक के रूप में किया जाता है। कैलिफोर्निया 252 का उपयोग एंटीनोप्लास्टिक के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग एंटीनोप्लास्टिक के रूप में किया जाता है। गोल्ड 94 का उपयोग एंटीनियोप्लास्टिक के रूप में किया जाता है। होल्मियम 66, 26 घंटे का निदान और उपचार के लिए विकास किया जा रहा है। यकृत ट्यूमर। आयोडीन 125, 60D,
का उपयोग कैंसर ब्रैकेथेरेपी, प्रोस्टेट और में किया जाता है। दिमाग। ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज विद आयोडीन 131. Iodine 131 is therapeutically used for to treat thyroid cancer. Hyperthyroidism, including Graves' disease, toxic multinodular goiter, and toxic autonomously functioning thyroid nodules, and non-toxic multinodular goiter. Palliative treatment of bone metastasis. Various radioisotopes and pharmaceuticals are used to deliver palliative treatment of bone metastases, including samarium-153. SM-153, strontium-89, cesium-89, chloride, and phosphorus-32, P-32, sodium phosphate. आयोडीन 131 से थायराइड रोग का उपचार। आयोडीन 131 का उपयोग चिकित्सीय रूप से थायराइड कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स रोग, विषाक्त बहुकोशिकीय सहित घेंघा और विषैले स्वायत्त रूप से कार्य करने वाले थायरॉइड नोड्यूल और गैर विषैले बहुकोशिकीय घेंघा। अस्थि मेटास्टेसिस का उपशामक उपचार। डिलीवरी के लिए विभिन्न रेडियोआइसोटोप और फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग किया जाता है। समैरियम 153 सहित हड्डी मेटास्टेस का उपशामक उपचार। SM-153, strontium-89, cesium-89, chloride, और phosphorus-32, P-32, sodium phosphate. The two most common side effects occurring from radiopharmaceutical therapy for metastatic bone disease are initial increased bone pain, flare, and a decrease in WBC and platelet counts. Treatment of arthritis. Erbium 169, used for relieving arthritis pain in synovial joints. Diagnostic radiopharmaceuticals. Ammonia N13 injection used for diagnostic coronary artery disease. Chromium 51 used for diagnosis of pernicious anemia. Holmium 166 used for diagnosis and treatment of liver tumors. Iodine 125 used diagnostically to evaluate the filtration rate of kidneys. से होने वाले दो सबसे आम दुष्प्रभाव मेटास्टेटिक हड्डी रोग के लिए रेडियोफार्मास्यूटिकल थेरेपी हैं। प्रारंभिक तौर पर हड्डी का दर्द, भड़कना, बढ़ गया और WBC में कमी आ गई। प्लेटलेट गिनती। गठिया का इलाज। एर्बियम 169, सिनोवियल जोड़ों में गठिया के दर्द से राहत के लिए उपयोग करें। डायग्नोस्टिक रेडियोफार्मास्यूटिकल्स। अमोनिया N13 इंजेक्शन का उपयोग कोरोनरी धमनी के निदान के लिए किया जाता है। बीमारी। क्रोमियम 51 का उपयोग घातक रक्ताल्पता के निदान के लिए किया जाता है। होल्मियम 166 का उपयोग यकृत ट्यूमर के निदान और उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन 125 का निस्पंदन दर का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक रूप से उपयोग किया जाता है। गुर्दे। Storage of radioactive substances. Radiopharmaceuticals should be kept in well-closed containers and stored in an area assigned for the purpose. The storage conditions should be such that the maximum radiation dose rate to which persons may be exposed is reduced to an acceptable level. Care should be taken to comply with national regulations for protection against ionizing radiation. Radiopharmaceutical preparations that are intended for parenteral use should be kept in a glass vial, ampoule or syringe that is sufficiently transparent to permit the visual inspection of the contents. Glass containers may darken under the effect of radiation. रेडियोधर्मी पदार्थों का भंडारण। रेडियोफार्मास्यूटिकल्स को अच्छी तरह से बंद कंटेनरों में रखा जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में संग्रहित किया गया भंडारण की स्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि अधिकतम हो। जिस विकिरण खुराक की दर व्यक्तियों के संपर्क में आ सकती है, उसे कम कर दिया गया है। एक स्वीकार्य स्तर। राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन का ध्यान रखा जाना चाहिए। आयनकारी विकिरण से सुरक्षा। रेडियोफार्मास्यूटिकल तैयारी जो पेरेंट्रल के लिए अभिप्रेत है।
उपयोग को कांच की शीशी, एम्पुल या सिरिंज में रखना चाहिए। के दृश्य निरीक्षण की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से पारदर्शी सामग्री। विकिरण के प्रभाव में कांच के कंटेनर काले पड़ सकते हैं। Precautions to be taken in handling of radiopharmaceuticals. Great care has to be taken in handling storage of radioactive material. For protecting people and personnel who handle it, the working areas should not get contaminated with radioactive material. If the radioactive liquid has to be handled, it must be carried in trays, having absorbent tissue paper so that any spillage will get absorbed by paper. Rubber gloves have to be used when working with radioactive liquids. रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के संचालन में बरती जाने वाली सावधानियां। रेडियोधर्मी सामग्री के भंडारण को संभालने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसे संभालने वाले लोगों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए कार्यक्षेत्र रेडियोधर्मी से दूषित नहीं होना चाहिए। सामग्री। यदि रेडियोधर्मी तरल को संभालना है, तो इसे ट्रे में ले जाना चाहिए। अवशोषक टिश्यू पेपर रखें ताकि कोई भी रिसाव अवशोषित हो जाए। कागज द्वारा। रेडियोधर्मी के साथ काम करते समय रबर के दस्ताने का उपयोग करना होगा। तरल पदार्थ। Puppets operated by mouth should never be employed. Before making use of glass apparatus, it must be ensured that they have been inactive. The waste radioactive materials have to be stored till the activity becomes low before its disposal. Smoking, eating, drinking activities are prohibited in the area of radioactive work. The radioactive emitter should be handled with forceps and never by hand. Sufficient shielding device should be used. Radioactive materials have to be stored in suitable labeled containers, shielding by bricks and preferably in a remote corner. Great care has to be applied for disposal of radioactive materials. A regular monitoring of radioactivity is to be done in area where radioactive material is stored. मुंह से संचालित पिपेट का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। पहले, कांच के उपकरण का उपयोग करते समय, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके पास है। निष्क्रिय हो गया। अपशिष्ट रेडियोधर्मी पदार्थों को संग्रहित करना होगा, जब तक कि उसके निपटान से पहले गतिविधि कम न हो जाए। के क्षेत्र में धूम्रपान, खाना, पीना गतिविधियां निषिद्ध हैं। रेडियोधर्मी कार्य। रेडियोधर्मी उत्सर्जक को संदंश से संभाला जाना चाहिए और कभी हाथ से नहीं। पर्याप्त परिरक्षण उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। रेडियोधर्मी सामग्रियों को उपयुक्त लेबल में संग्रहित किया जाना चाहिए। कंटेनर, ईंटों द्वारा ढाल और अधिमानतः एक दूरस्थ कोने में। रेडियोधर्मी पदार्थों के निपटान के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जिस क्षेत्र में रेडियोधर्मिता की नियमित निगरानी की जानी है, रेडियोधर्मी पदार्थ संग्रहित होता है। रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। Contrast materials, also called contrast agents or contrast media, are used to improve pictures of the inside of the body produced by X-rays. Computed tomography, CT, magnetic resonance, MR, imaging, and ultrasound. Often, contrast materials allow the radiologist to distinguish normal from abnormal conditions. They are substances that temporarily change the way X-rays or other imaging tools interact with the body. रेडियो अपारदर्शी कंट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट सामग्री, जिसे कंट्रास्ट एजेंट या कंट्रास्ट मीडिया भी कहा जाता है, एक्स-रे द्वारा उत्पादित शरीर के अंदर की तस्वीरों को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी, चुंबकीय अनुनाद, एमआर, इमेजिंग, और अल्ट्रासाउंड। अक्सर, कंट्रास्ट सामग्री रेडियोलॉजिस्ट को सामान्य में अंतर करने की अनुमति देती है। असामान्य स्थितियों से, वे ऐसे पदार्थ हैं जो अस्थायी रूप से एक्स-रे या अन्य तरीके को बदल देते हैं। इमेजिंग उपकरण शरीर के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। When introduced into the body prior to an imaging exam, contrast materials make certain structures or tissues in the body appear
different on the images than they would if no contrast material had been administered. Contrast materials help distinguish or contrast selected areas of the body from surrounding tissue by improving the visibility of specific organs, blood vessels, or tissues. Contrast materials help physicians diagnose medical conditions. जब इमेजिंग परीक्षा से पहले शरीर में डाला जाता है, तो इसके विपरीत सामग्रियां शरीर में कुछ संरचनाएं या ऊतक प्रकट करती हैं। अगर कोई कंट्रास्ट सामग्री नहीं होती तो वे छवियों से भिन्न होती। प्रशासित किया गया था। कंट्रास्ट सामग्री चयनित क्षेत्रों को अलग करने या विपरीत करने में मदद करती है। आसपास के ऊतकों से शरीर विशिष्ट अंगों, रक्त वाहिकाओं या की दृश्यता में सुधार करके ऊतक कंट्रास्ट सामग्री चिकित्सकों को चिकित्सा का निदान करने में मदद करती है। स्थितियां Contrast materials enter the body in one of three ways. They can be swallowed, taken by mouth or orally, administered by enema, given rectally, injected into a blood vessel, vein or artery, also called given intravenously or intra-arterially. Following an imaging exam with contrast material, the material is absorbed by the body or eliminated through urine or bowel movements. कंट्रास्ट सामग्री 3 तरीकों में से एक में शरीर में प्रवेश करती है। वे हो सकते हैं निगल लिया गया, मुंह से या मौखिक रूप से लिया गया, एनिमा द्वारा प्रशासित, मलाशय द्वारा दिया गया, रक्त वाहिका, नस या धमनी में इंजेक्ट किया जाता है, इसे दिया भी कहा जाता है, अंतःशिरा या अंतःधमनी। कंट्रास्ट सामग्री के साथ एक इमेजिंग परीक्षा के बाद सामग्री है शरीर द्वारा अवशोषित या मूत्र या आंत्र के माध्यम से समाप्त हो जाता है। आंदोलनों There are several types of contrast materials. 1. Iodine based. 2. Barium sulfate. These two compounds are used in X-ray and computed tomography, CT, imaging exams. Radio contrast agents used in X-ray examinations can be grouped in positive, iodinated agents, barium sulfate, and negative agents, air, carbon dioxide, methyl cellulose. 1. Iodine, circulatory system, iodinated contrast contains iodine. It is the main type of radio contrast used for intravenous administration. Its uses include कंट्रास्ट सामग्रियां कई प्रकार की होती हैं। 1. आयोडीन आधारित। 2. बेरियम सल्फेट। इन दोनों यौगिकों का उपयोग एक्स-रे और गणना में किया जाता है। टोमोग्राफी, सीटी, इमेजिंग परीक्षा। एक्स-रे परीक्षाओं में उपयोग किए जाने वाले रेडियो कंट्रास्ट एजेंटों को समूहीकृत किया जा सकता है। सकारात्मक, आयोडीन युक्त एजेंट, बेरियम सल्फेट, और नकारात्मक एजेंट, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल सेलुलोज। 1. आयोडीन, संचार प्रणाली, आयोडीन युक्त कंट्रास्ट होता है। आयोडीन, ये रेडियो कंट्रास्ट का मुख्य प्रकार है जिसका उपयोग किया जाता है। अंतःशिरा प्रशासन, इसके उपयोग में शामिल हैं कॉन्ट्रास्ट सीटीज, एंजियोग्राफी, आर्टेरियल इन्वेस्टिगेशंस, वेनोग्राफी, वीनस इन्वेस्टिगेशंस। 2. Barium sulfate is mainly used in the imaging of the digestive system. The substance exists as a water-insoluble white powder that is made into slurry with water and administered directly into the gastrointestinal tract. Barium enema, large bowel investigation, and DCBE. Double contrast barium enema. Barium swallow, esophageal investigation. Barium meal, stomach investigation, and double contrast. Barium meal, barium follow-through, stomach and small bowel investigation. CT pneumocolon, virtual colonoscopy. Contrast CT, angiography, धमनी जांच, वेनोग्राफी, शिरापरक जांच। 2. बेरियम सल्फेट का उपयोग मुख्य रूप से पाचन की इमेजिंग में किया जाता है। प्रणाली, ये पदार्थ पानी में अघुलनशील सफ़ेद पाउडर के रूप में मौजूद होता है, जिसे पानी के साथ घोल बनाया जाता है और सीधे डाला जाता है।
जठरांत्र पथ में, बेरियम एनीमा, बड़ी आंत जांच, और DCBE, डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमा, बेरियम निगल, ग्रासनली जांच, बेरियम भोजन, पेट की जांच, और डबल कंट्रास्ट बेरियम भोजन, बेरियम पेट और छोटी आंत से होकर गुजरता है। जांच पड़ताल, सीटी न्यूमोकोलोन, वर्चुअल कोलोनोस्कोपी। Biological effects of radiations. Although we tend to think of biological effects in terms of the effect of radiation on living cells, in actuality, ionizing radiation, by definition, interacts only with atoms by a process called ionization. Thus, all biological damage effects begin with the consequence of radiation interactions with the atoms forming the cells. As a result, radiation effects on humans proceed from the lowest to the highest levels as noted in the above list. विकिरणों के जैविक प्रभाव। हालांकि हम जैविक प्रभावों के बारे में प्रभाव के संदर्भ में सोचते हैं, परिभाषा के अनुसार, जीवित कोशिकाओं पर विकिरण, वास्तव में, आयनीकृत विकिरण, आयनीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा केवल परमाणुओं के साथ संपर्क करता है। इस प्रकार, सभी जैविक क्षति प्रभाव परिणाम से शुरू होते हैं। कोशिकाओं को बनाने वाले परमाणुओं के साथ विकिरण अंतःक्रिया। परिणामस्वरूप, मनुष्यों पर विकिरण का प्रभाव निम्नतम से आगे बढ़ता है। उच्चतम स्तर जैसा कि उपरोक्त सूची में बताया गया है। Cell damage. There are two mechanisms by which radiation ultimately affects cells. These two mechanisms are commonly called direct and indirect effects. Direct effect. If radiation interacts with the atoms of the DNA molecule, or some other cellular component critical to the survival of the cell, it is referred to as a direct effect. Such an interaction may affect the ability of the cell to reproduce and thus survive. If enough atoms are affected such that the chromosomes do not replicate properly, or if there is significant alteration in the information carried by the DNA molecule, then the cell may be destroyed by direct interference with its life sustaining system. कोशिका क्षति। दो तंत्र हैं जिनके द्वारा विकिरण अंततः कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इन दो तंत्रों को आमतौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रभाव, यदि विकिरण डीएनए अणु या कुछ के परमाणुओं के साथ संपर्क करता है, कोशिका के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण अन्य सेलुलर घटक, इसे संदर्भित किया जाता है प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में। इस तरह की बातचीत कोशिका की पुनरुत्पादन की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और इस प्रकार जीवित रहें। यदि पर्याप्त परमाणु प्रभावित होते हैं जैसे कि गुणसूत्र प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक से दोहराएं, या यदि जानकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो डीएनए अणु द्वारा किया जाता है, तब कोशिका के जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से उसे नष्ट किया जा सकता है। सतत प्रणाली। रेडिएशन इफेक्ट्स। हाई डोसेस acute. High doses tend to kill cells, while low doses tend to damage or change them. High doses can kill so many cells that tissues and organs are damaged. This in turn may cause a rapid acute radiation syndrome, RS, whole body response, often called THE. विकिरण प्रभाव। उच्च खुराक। तीव्र उच्च खुराक कोशिकाओं को मारने की प्रवृत्ति रखती है, जबकि कम खुराक क्षति या परिवर्तन की ओर ले जाती है। उन्हें उच्च खुराक इतनी अधिक कोशिकाओं को मार सकती है कि ऊतक और अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये बदले में तीव्र विकिरण सिंड्रोम ARS का कारण बन सकता है। साबुत शरीर की प्रतिक्रिया को अक्सर कहा जाता है low doses, chronic, low doses spread out over long periods of time don't cause an immediate problem to any body organ. The effects of low doses of radiation occur at the level of the cell, and the results may not be observed for many years. High dose effects. Blood count changes. Vomiting. Threshold. Death. Threshold. कम खुराक. Chronic. कम खुराक लंबे समय तक फैलती है।
समय शरीर के किसी भी अंग के लिए तत्काल कोई समस्या पैदा नहीं करता है। विकिरण की कम खुराक का प्रभाव कोशिका के स्तर पर होता है, और परिणाम कई वर्षों तक नहीं देखे जा सकते। उच्च खुराक प्रभाव, रक्त गणना बदल जाती है। उल्टी, दहलीज, मौत। सीमा, low doses effect. There are three general categories of effects resulting from exposure to low doses of radiation. These are genetic. The effect is mutation of the reproductive cells passed on to the offspring of the individual exposed. Somatic. The effect is primarily suffered by the individual exposed. Since cancer is the primary result, it is sometimes called the carcinogenic effect. In utero, some mistakenly consider this to be a genetic consequence of radiation exposure, because the effect, suffered by a developing embryo, fetus, is seen after birth. However, this is actually a special case of the somatic effect, since the embryo, fetus is the one exposed to the radiation. कम खुराक का प्रभाव, इसके संपर्क से उत्पन्न होने वाले प्रभावों की 3 सामान्य श्रेणियां हैं। विकिरण की कम खुराक, ये हैं आनुवंशिक। इसका प्रभाव प्रजनन कोशिकाओं के उत्परिवर्तन से होता है। उजागर व्यक्ति की संतानें। दैहिक प्रभाव, मुख्य रूप से उजागर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। चूंकि कैंसर प्राथमिक परिणाम है, इसलिए इसे कभी कभी कहा जाता है कार्सिनोजेनिक प्रभाव। गर्भाशय में कुछ लोग गलती से इसे आनुवंशिक परिणाम मानते हैं। विकिरण जोखिम का, क्योंकि प्रभाव एक विकासशील द्वारा भुगतना पड़ा। भ्रूण जन्म के बाद देखा जाता है। हालांकि ये वास्तव में एक विशेष है। दैहिक प्रभाव का मामला, क्योंकि भ्रूण ही उजागर होता है। विकिरण के लिए